Hello guys. So let's start with the coming sum of your journal entries. Right now we are going to start with question number 5. हमने last session में question number 4 तक already कर लिया है. So we are now beginning with question number 5 of your journal entries worksheet, right? So question number 5, what does it say? Kadambari has started a business with the name of M. Ravji and Company. Write journal entries for the following transactions of July. That is okay. जुलाई के काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द सेम. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम. जस्ट अ मिनट. राइट. Here I have already made a format and I request you all कि आप लोग फॉर्मेट में लिखें, नरेशंस के साथ लिखें. सी मैं यहाँ पे नरेशंस नहीं लिख रही हूँ, उसका एक ही रीज़न है कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि समरी स्टेटमेंट ही लिखना है एंड आई कैन more focus on the concepts and logics rather than focusing on the narrations and format, right? But what I expect from you guys is कि आप लोग जब भी लिखो तो आप narrations के साथ proper format में लिखो, so that आपको ही आगे जाके इसकी habit रहे और उसी वे में आप लिखो, right? चलो let's start doing it. Business bringing in cash 15,000, stock 10,000 and furniture 5,000. So let's start doing it. Cash account debit 15,000, stock account debit 10,000, furniture account debit 5,000. To capital account 30,000. Is it completely all right that we have done previously also? So I think it is completely fine. Now purchase goods of 1500 for cash. हमने cash में goods buy करे, so purchase account debit to cash account. So let's write it down. Purchase account debit to cash account. How much it was? 1500. So 1500 and 1500. Then next, purchase goods of 1250 from Gayatri. Gayatri के पास से 1250 के goods buy करे, right? So purchase account debit to not cash. यहाँ पे नाम दिया हुआ है, so to Gayatri. Gayatri is the giver, right? So let's write it down. Purchase account debit to Gayatri's account 1250 and 1250. Correct? Chalo. Then next, is the screen clearly visible? Yes, it is. Chalo. Then next, received an order to send goods of 1500 to Indra. इंद्रा के पास से हमें ऑर्डर मिला, सिर्फ ऑर्डर मिला है और कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है? ऑर्डर मिला है. तो हम क्या करेंगे? इसकी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग नो एंट्री, और यू मे राइट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एनीथिंग. सेंड गुड्स टू इंदिरा एज पर ऑर्डर. इंदिरा को हमने गुड्स भेजे एज पर ऑर्डर, राइट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ओवर हियर? इंदिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500, राइट? सो 9th, इंदिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500. Correct? Chalo. Then sold goods of rupees 1200 to Rohini. Half of the amount which she paid by a bearer check is as good as cash. Bearer check is as good as cash. So we generally write cash when the bearer check is received. We have studied the difference between bearer and a cross check in our classification ka videos, right? So we will be writing what? Cash account debit 600, Rohini's account debit 600 टू सेल्स अकाउंट 1200. क्यों? 1200 के गुड्स बेचे, जिसमें से 600 उसने दे दिए, तो 600 अभी लेने बाकी ना उससे. सो वी आर सपोज टू राइट रोहिणी करके कोई डेटर मेरा खड़ा हुआ ना इधर, राइट? सो लेट्स राइट इट डाउन. रोहिणीज अकाउंट डेबिट
600, कैश अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट 1200. चलो देन नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹300 बीइंग डिफेक्टिव, रोहिणी रिटर्न टू देम. हमने उसको गुड्स बेचे पर रोहिणी को डिफेक्टिव लगे तो उसने हमें वापस कर दिए. गुड्स आर कमिंग इन एंड रोहिणी इज द गिवर, राइट. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहिणी अकाउंट 300. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहिणी's अकाउंट 300 and 300. चलो देन नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स ऑफ 250 टू गायत्री. हमने गायत्री को गुड्स रिटर्न करे, हमने उससे परचेस करे थे जो हमने उसको लौटा दिए. हमें सही नहीं लगे होंगे तो हमने उसको लौटा दिए. सो गायत्रीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, राइट. लेट्स राइट इट डाउन. गायत्रीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 250 एंड 250. चलो फिर नेक्स्ट, सेटल्ड अकाउंट ऑफ गायत्री बाय पेइंग कैश. हमने गायत्री का अकाउंट सेटल कर दिया बाय पेइंग कैश. इसका मतलब क्या हुआ? सी द ट्रांजेक्शन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. हमने गायत्री के पास से 1250 का परचेस किया था, करेक्ट. उसमें से 250 के गुड्स लौटा दिए, करेक्ट. सो कैन आई से 1000 रुपीज़ के 1000 रुपीज़ आई एम सपोज टू पे टू गायत्री, राइट. सो माई नेक्स्ट एंट्री वुड बी गायत्रीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000. मैम ये कैसे आया 1000? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आपको दिखे तो दैट इज टू गायत्री 1250, करेक्ट. यानी कि गायत्री को आई एम सपोज टू पे 1250. फिर यहाँ पे गायत्री को मैंने 250 के गुड्स लौटा दिए. तो कहना से मेरे को अभी भी गायत्री को 1000 रुपीज़ पे करने बाकी है, विच आई हैव पेड बाय पेइंग कैश, राइट. ऐसा मेरे को बोला गया है तो आई हैव डन दैट. गायत्री इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, राइट. चलो देन नेक्स्ट, इंदिरा रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200. इंदिरा ने हमें रिटर्न करे गुड्स, फाइन. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इंदिराज अकाउंट 200. चलो फिर परचेज टेबल्स एंड चेयर्स ऑफ 1200 फ्रॉम श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट. हमने श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट में से टेबल एंड चेयर्स बाय करे. क्या ये परचेज हुआ? क्या बोला गया है कि ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है या कर रही है? द आंसर इज नो, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट, राइट. सो लेट्स राइट इट डाउन. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट अकाउंट 1200 एंड 1200. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? समझ में आ रहा है सही से? चलो फिर परचेज गुड्स ऑफ 1200 फ्रॉम प्रद्युमन ऑन क्रेडिट. ही पेड 50 फॉर कैरेज ऑन आवर बिहाफ. प्रद्युमन के पास से हमने गुड्स बाय करे और उसने हमारे बिहाफ पे कैरेज पे करा, हमारा खर्चा उसने पे करा, करेक्ट. समझना अच्छे से. परचेज कितने के करे? 1200 के गुड्स बाय करे एंड प्रद्युमन के पास से बाय करे एंड उसने हमारे बिहाफ पे 50 रुपीज़ का कैरेज पे करा, राइट. सो व्हाट विल बी माई जर्नल एंट्री ओवर हियर? समझना अच्छे से. गुड्स कितने के आए? परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? गुड्स कितने के आए यहाँ पे? 1200 के, राइट. सो 1200. कैरेज कितना पे करना पड़ेगा? कैरेज का भी खर्चा हुआ ना, डेबिट
This is our expense which Pradyuman has paid on our behalf. So we need to write this expense because ये हमें हमारा ही खर्चा है तो हमें दिखाना तो पड़े. करेक्ट. कैरेज इज आवर एक्सपेंस जो हमारे बिहाफ पे प्रद्युमन ने पे करा है, हम तो उसको देने ही वाले हैं पैसे, राइट. सो टू प्रद्युमन्स अकाउंट 1250. देन sold goods costing rupees 1000 after adding 30% profit to Chandra. ओके फाइन. 1000 के गुड्स थे, 30% प्रॉफिट यानी 300 ऐड करके 1300 के हमने चंद्रा को बेचे. दैट इज ओके. पेड ₹30 फॉर कैरेज ऑन हिज बिहाफ. चंद्र के बिहाफ पे हमने कैरेज भरा, पर क्या ये हमारा खर्चा है? द आंसर इज नो. आज नहीं तो कल हम तो चंद्र के पास से रिकवर करने वाले हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू राइट इट एज एन एक्सपेंस. इट इज व्हाट? इट इज अमाउंट रिसीवेबल. आज नहीं तो कल चंद्रा मेरे को पैसा देने वाला है, राइट, कैरेज का. सो मुझे वो एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाना है. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. क्यों? क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने किसी के बिहाफ पे करा, वो खर्चा है. हाँ, कैश गई वो मैं दिखाऊंगी, पर मेरा एक्सपेंस है ऐसे मैं नहीं दिखा सकती, राइट. सो चंद्र के पास से मेरे को कितने पैसे लेने हैं? 1300 प्लस 30. सो टोटल आई एम सपोज टू रिसीव व्हाट? 1330 फ्रॉम चंद्रा, राइट. चलो लेट्स पास एन एंट्री. चंद्रा's account debit 1330 to sales account 1300 and to कैश अकाउंट. हमारे पास से कैश गई ना 30 रुपीज़ की, उसका कैरेज भरा उसकी, तो वो हमें लिखना है, राइट. टू कैश अकाउंट 30 रुपीज़. देन परचेज गुड्स ऑफ 750 फॉर कैश एंड ऑक्शन. ऑक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने परचेज करा, सो परचेज टू कैश 750. 8th परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 and 750. चलो देन परचेज एन ओल्ड स्कूटर ऑफ 10,000. व्हीकल बाय करा है 10,000 का, सो व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 and 10,000. Done. I hope you all are clear with this sum. हाँ, ये इसमें काफ़ी सारे अच्छे ट्रांजेक्शन्स थे जो हमने डिस्कस करे और हमें समझ में आए, राइट. If any doubts, question, queries, you may definitely contact on the given number. You can definitely comment on the video. We can solve it out. I hope you are clear with this particular sum. Now let's begin with question number 6, which is an excellent question. Goods of ₹1500 were taken away for personal use. Personal use के लिए goods withdraw करे हैं, right? So when goods are withdrawing for personal use, that is goods are going out, that to other than sales. So क्या करेंगे? purchase account को credit करेंगे, right? So let's write it down. कौन सी डेट थी? August 1st. फाइन, चलो. This is your question number 6. I have the format ready और मैं वही फॉर्मेट में लिख रही हूँ, एंड एज रिक्वेस्टेड अर्लियर कि आप लोग भी उसी फॉर्मेट्स में लिखा करो. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. सो August 1st, goods withdrawn for personal use. So drawings account debit to purchase account. How much it is? Let's look at the transaction. कहाँ गया transaction? Yes, here it is. 1500, right? So yes, 1500 and 1500. चलो then next, goods of 1000 which were not insured were destroyed by fire. इंश्योरेंस भी नहीं लिया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो लॉस हो गया पूरा का पूरा. goods are going out, yes. other than sales, yes. loss is there, yes. so what will be my journal entry? loss by fire account debit
to purchase account, correct. 1000 rupees, let's do it quickly. Loss by fire account debit to purchase account. Chalo. Then next, goods of rupees 500 were stolen away from the business. Goods of rupees 500 were stolen away from business. Again goods are going out, that too other than sales. So हम क्या करेंगे, purchase को credit करेंगे and loss हो गया as goods are stolen away. So my entry will be loss by theft account debit to purchase account 500 and 500. Sure. Then next, goods of rupees 200 were recovered back after police inquiry. See, आगे चोरी हो गए goods, तो हमने क्या करा होगा, डेफिनेटली पुलिस को बोला होगा कि भाई दिस इज द थिंग, ये goods हमारे ऐसे चोरी हो गए हैं. पुलिस ने इंक्वायरी बिठाई और goods जो चोरी हुए थे उसको 200 की goods को तो रिकवर कर लिया. अब समझना, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट. बैड डेट होता है, करेक्ट, तो हम उसको एज अ लॉस मनी डेबिट करते हैं. देन बैड डेट रिकवर होता है तो क्रेडिट होता है. सेम वे सी, अकाउंट्स प्लस माइनस की लैंग्वेज नहीं जानता, अकाउंट्स हमेशा डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज समझता है. इन दिस केस हम क्या करेंगे कि भाई हाँ, वॉट एवर गुड्स विच आर रिकवर्ड, तो हमने जो एंट्री लॉस की पास करी थी ना उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट वे में लिख देंगे. करेक्ट. कैसे करेंगे, लेट्स लुक एट द सेम. 10th, ये ऊपर वाली एंट्री जो है 8th वाली, उसको ही मुझे उल्टा कर देना है. सो परचेज अकाउंट डेबिट 200 टू लॉस बाय थेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट 200. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट. जैसे बैड डेट था वो रिकवर हुआ तो वी यूज टू राइट बैड डेट रिकवर्ड, वैसे ही यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट है जो रिकवर हुआ, तो वी विल बी राइटिंग व्हाट, लॉस बाय थेफ्ट रिकवर्ड. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट. चलो देन नेक्स्ट, goods of 3000 were destroyed by fire. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम. हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया. इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम, मीनिंग देयर बाय वी आर सपोज टू रिसीव द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. यस और नो. और मैंने आपको आगे भी सिखाया था, रिसीवेबल्स विल बी डेबिटेड एंड पेएबल्स विल बी क्रेडिटेड. सो हियर आई विल बी राइटिंग व्हाट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम अकाउंट डेबिट, और यू मे राइट इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम अकाउंट डेबिट to what goods are going out, definitely other than sales, so to purchase account, correct. So let's write it down. Insurance companies claim, or you may write like this also, this is that also fine. Insurance company account debit to purchase account 3000 and 3000. Is it completely all right? Chalo, let's move ahead. Goods of rupees 5000 were swept away in flood, for which General India Insurance Company accepted the claim of 2500. गुड्स तो गए हैं 5000 के, करेक्ट, पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, नहीं हमें जेन्युइननेस तो 2500 की लग रही है तो हम आपको 2500 दे देंगे. हम आपको 2500 का क्लेम आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी के 2500 का नहीं कर रहे हैं, राइट. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, समझना अच्छे से. हाँ, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2500, करेक्ट. लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट और फ्लड, whatever फ्लड था आई सपोज, सो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेज अकाउंट 5000. इज इट कंप्लीटली क्लियर. गुड्स थे जो फ्लड में चले गए,
पर इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे मी 2500, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2500 का हुआ, दैट आई एम सपोज टू राइट. चलो देन नेक्स्ट, कैश ऑफ ₹200 एंड गुड्स ऑफ ₹3000 वर गिवन टू एन आश्रम. आश्रम मानी कहना इसे डोनेट करे, मैंने डोनेशन दिया, कैश भी दिया और गुड्स भी दिया. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स, डेफिनेटली परचेस को तो क्रेडिट करना ही करना है, करेक्ट. डोनेशन टोटल कितने का दिया? 500 का दिया, जिसमें से 200 की कैश थी, 300 के गुड्स थे. लेट्स डू इट. डोनेशन अकाउंट डेबिट 500 2, कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट 200 2, goods are going out other than sales, so to purchase account 300. Is it completely all right? See, this is an excellent sum. आपका ध्यान 100% यहाँ चाहिए मेरे को. चलो then 20th, goods of 5000 were distributed as free samples for advertisement purpose. advertisement purpose के लिए हमने goods free में दे दिए लोगों को, तो हमारे लिए तो advertisement का खर्चा ही हो गया one sort of. So let's write it down. कौन सी डेट थी? 20th. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 and 5000. Now next, goods of 300 were received as free samples from Nirma company. Nirma company से मेरे को goods मिले free में. Am I supposed to write anything? The answer is no. No entry. So let's write it down. No entry. You may write non-economic transaction. Anything is fine. Then received 500 on sale of goods received from Nirma company on date 22. हमने तो सेल ही करा ना अल्टीमेटली. गुड्स गए मेरे पास से, भले फ्री में मिले थे, जीरो कॉस्ट थी, पर हमने सेल करा अल्टीमेटली, राइट. सो व्हाट विल बी माय एंट्री ओवर हियर? कैश मिली मेरे को, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500, राइट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500. चलो देन नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹1000 were destroyed by fire. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 500. सो 1000 में से 500 तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है. बाकी के जो गुड्स है जो ऑलरेडी फायर में डिस्ट्रॉय हो गए, स्क्रैप हो गए, जल भुन के खाक हो गए, राइट, उसको भी मैंने बेचा ना, तो मेरे को भंगार के यानी कि स्क्रैप के कितने पैसे मिले? 100 रुपये मिले. तो कहना है इसे कि मेरा एक्चुअल लॉस तो 400 का ही हुआ, करेक्ट. इज इट फाइन? समझना, 1000 के गुड्स थे, 500 तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वाले दे ही रहे थे. अब बाकी के 500 का जो भंगार था, स्क्रैप था, उसको मैंने बेच दिया भंगार वाले को, उसने मेरे को 100 रुपये दिए. तो अल्टीमेटली 600 मेरे हाथ में आने वाले हैं, उसमें से 100 आ गए, 500 आएंगे इंश्योरेंस के पास से. तो मेरा अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ? 400 का हुआ, करेक्ट. सो लेट्स राइट इट डाउन. 28th, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 500, cash is coming in, so debit 100, loss by fire account debit 400, 2 purchase account 1000, क्योंकि मेरे पास से 1000 के गुड्स गए, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, रंजीत सोप्स ऑफ ₹300 were received as free samples. फ्री सैम्पल्स रिसीव हुआ है तो उसका तो कुछ करना ही नहीं है, दैट इज फर्स्ट थिंग फॉर श्योर. ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 200 as free samples. Here it is amongst, then it is fine. Otherwise I could have cancelled the whole transaction because the sentence framing is wrong, right. यहाँ पे क्या बोला गया है मुझे कि भाई 300 के मेरे को फ्री सैम्पल्स रिसीव हुए और वही के वही फ्री सैम्पल्स मैंने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट. सो हियर माई जर्नल एंट्री तो कुछ आएगी नहीं क्योंकि फ्री में मिला, फ्री में दिया, सो देयर विल बी नो एंट्री. आई होप इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, एकदम सही से समझ में आ रहा है. आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.
which is again a wonderful transaction, wonderful sum rather. Record the following transaction in the journal of हरेश, right? हरेश के बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को. सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पे हमें जो भी बोला गया है रिकॉर्ड इन फॉलोइंग बुक्स एंड आई मीन whosoever person's books and etc. So we are supposed to write the title, right? कि भाई journal entries in the books of हरेश करके हमें शुरू करना है, हमें एवे ही शुरू नहीं कर देना. ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले होंगे तब बहुत काम में आने वाली है, राइट? चलो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 7. So the first transaction is started business by bringing in cash rupees 12,000 and stock of rupees 3,000. Fine, cash and stock is coming in one thing and capital because owner is bringing in the same. So August 1, cash account debit, stock account debit. 2, capital account, how much it was? 12,000 and 3,000. So 12,000 and 3,000 comes to 15,000 and we are well aware of this particular transaction. Then next, opened an account with the bank by depositing 10,000. मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए. बैंक का बैलेंस बढ़ा तो डेबिट करेंगे. इफ यू रिमेंबर द ड्यूअल इफेक्ट्स, टू फोल्ड इफेक्ट्स हमने पढ़ी, राइट? सो बैंक अकाउंट डेबिट और मेरे हाथ में से कैश गई, भले बैंक में गई पर कैश तो गई, सो कैश अकाउंट क्रेडिट. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? चलो, सो 5th, बैंक अकाउंट डेबिट. 2, कैश अकाउंट कितना था? 10,000. So let's write it down, 10,000 and 10,000. चलो, then next, purchase goods of 12,000 from हर्षल. हर्षल से हमने goods purchase करे and name is given. So हमें पता ही है कि it is a credit transaction. So what we are going to write? Purchase account debit to हर्षल account, right? चलो लिखे, purchase account debit to Harshal's account. 12,000 and 12,000. Is it completely all right? सही से समझ में आ रहा है? चलो, then next, of the goods purchased from Harshal, return goods of 300 being defective. हमने हर्षल से जो बाय करा उसमें कुछ डिफेक्टिव लगा हमें तो हमने क्या करा? हर्षल को वापस दे दिया. सो हमने परचेज करा था वो परचेज रिटर्न कर दिया हर्षल को. सो लेट्स राइट इट डाउन. Harshal is the receiver, so Harshal's account debit to purchase return account 300 and 300. Easy. चलो, then next, purchase goods of 8,000 from हर्षिदा and paid half amount by check. हमने हर्षिदा से गुड्स बाय करे और हमने हाफ अमाउंट चेक थ्रू दे दिया. मानी कि हाफ अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है, करेक्ट? गुड्स आए मेरे पास कितने के? 8,000 के. उसमें से हाफ आई हैव पेड, हाफ इज येट टू बी पेड, हाफ इज पेएबल, आई कैन से सो, राइट? सो लेट्स रिकॉर्ड इट. परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 to bank account 4,000 as I have given the check, so it has to be bank account, right? To Harshida's account 4,000 because 4,000 is yet to be paid, correct? चलो, फिर sold goods purchased from Harshida to Hansa after adding 30% profit. प्रॉफिट लगा के हमने हंसा को बेच दिया तो 8,000 के गुड्स थे प्लस 30%, सो 2,400. सो मैंने हंसा को 10,400 का सेल्स करा, ऐसा बोल सकते हैं हम, करेक्ट? सो लेट्स राइट इट डाउन. हंसा's account debit
to sales account 10,400 and 10,400. चलो then let's move ahead. हंसा रिटर्न गुड्स ऑफ 300. हंसा को सही नहीं लगा तो उसने मेरे को गुड्स रिटर्न करे 300, राइट. सेल्स रिटर्न हुआ ये, सो लेट्स राइट इट डाउन. गुड्स मेरे पास आए, हंसा ने दिए, राइट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हंसाज अकाउंट. ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं और अभी अगेन आई एम रिपीटिंग इट. परचेजेस डेबिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट होता है. परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है. एंड वी नो द लॉजिक. गुड्स आर कमिंग एंड गुड्स आर गोइंग आउट. दैट इज द ओनली लॉजिक वी हैव, राइट. चलो देन नेक्स्ट, sold goods of 15,000 to Hemali. That is very easy transaction. Hemali's account debit to sales account 15,000 and 15,000. चलो then next, goods of 200 were stolen away. लॉस हो गया, गुड्स चोरी हो गए. सो easy again. goods are going out other than sales. goods are going out, correct. so let's write it down. 22nd को हुआ ये transaction. so loss by theft account debit to purchase account. How much it is? It is 200. so 200 and 200. chalo then next, goods of 500 were destroyed by fire, for which the insurance company accepted a claim of rupees 300. 500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए पर इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट करा है? सिर्फ और सिर्फ 300 का. तो मेरे को लॉस कितने का हो गया? 200 का. इजी टू अंडरस्टैंड. चलो लेट्स राइट इट डाउन. ये हमने आगे करा हुआ है, सो सीम्स इजी. 25th, इंश्योरेंस कंपनी account debit 300. loss by fire account debit 200. क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट होता है. आई नो, आई होप कि आपको टू फोल्ड इफेक्ट सही से पता है. तो इसमें मैं वापस से डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों नहीं बोल रही हूँ, राइट. अज्यूमिंग यू हैव स्टडीड दैट टू फोल्ड इफेक्ट thoroughly with me, right. to purchase account 500. चलो लेट्स मूव अहेड. goods of 200 got wet by rains, on sale of which realized 50. गुड्स तो गए, डैमेज ही हुए हैं. 200 के गुड्स मेरे डैमेज ही हुए हैं, वेट हो गए हैं, गीले हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं. उसका मेरे को भंगार प्राइस, क्रैप प्राइस बेचा तो कितना मिला? 50 रुपीज मिला. कैन आई से 150 इज लॉस. सो लेट्स राइट इट डाउन. कैश अकाउंट डेबिट 50. लॉस बाय rain account debit 150. 2 goods are going out other than sales, so to purchase account 200. easy. चलो then next, received goods of 80 as free samples. free samples में मिले और कुछ नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? no entry. चलो then next, goods of 100 received as free samples were sold for 150. हमने तो बेचे ना, करेक्ट. गुड्स सेल कर दिए. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150 and 150. चलो then next, took away goods of rupees 150 from the business for personal use. पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स उठाए, गुड्स लेके गए, करेक्ट. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ओवर हियर? व्हाट वाज द डेट? 30th. जस्ट अ मिनट, एक रह गया है तो वो पहले ख़त्म कर दे. गेव गुड्स ऑफ 100 टू ऑर्फनेज. अगेन डोनेट किया मैंने गुड्स को. सो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एज गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स. So donation account debit
टू परचेज अकाउंट 100 ऑर्फनेज में दिए हैं तो। एंड नेक्स्ट क्या था कि भाई विड्रॉल्स करे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, मैंने गुड्स को विड्रॉ करा है 150 रुपीज़ के। सो लेट्स राइट इट डाउन। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 150 goods are going out other than sales. And last, exchange goods of cost price 800 for a bicycle of 700. बाइसिकल कितने की थी? 700 की थी। गुड्स मेरे पास से गए, बाइसिकल आई। सी रियल अपने टू फोल्ड इफेक्ट देखे तो इट इज इजी। बाइसिकल एंड गुड्स, करेक्ट। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। अमाउंट हमें कितनी डालनी है? तो अमाउंट हमें असेट की जो वैल्यू है वो ही डालनी है, करेक्ट। सो हियर bicycle account debit to purchase account 700 and 700. Is it completely clear? And we are done with our question number 7 as well. And I hope you all are clear with question number 7 also. We'll continue doing the sums in the coming session. Thank you.